Bye.
अपने बंदों के द्वारा हमारे साथ अपने वचन की बात करता है, तो और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पास्टर विक्टर साहब जो है आज हमारे साथ हैं इस आराधना में। तो हम बेनती करेंगे उनसे कि आज का वचन जो है वो हमारे साथ बांटें, ताकि आज अपने वचन से परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है उसको सुने, माने, स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को चलाने पाए। पास्टर तो असी प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय लिए, और प्रभु ने प्रभु के दास साढ़े दरम्यान विच हाज़र, और मैं प्रभु का धन्यवाद करदा कि जो दास घर विच आते हैं तो समझो यीशु मसीह साढ़े घर विच, क्योंकि प्रभु ने अपने दासां नूं ही भेजिया कि दो दो करके जाओ तो सुख समाचार की सेवा उन्होंने दी। तो प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ करते हैं। और अज अच्छा समा साढ़े लिए असी एक शादी के जोड़ा विषय के विच सारे इकट्ठे हुए हैं। इस घर विच बेटे की शादी है और सारे असी इस परिवार को अपन आशीषां दे नाल ब्लस करे और प्रभु अपन बरकतां दे नाल सारे काम दे विच वड्डी सफलता देवे। तो इसलिए असीं सारे एकत्रित हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, नाम की तारीफ करते हैं। और मैं उसको दसना चाहना कि बाइबल दे विच उत्पत्ति की किताब दे विच लिखिया प्रभु के कलाम विच कि प्रभु ने सब तो पहला जिहड़ा विआह जिहड़ा है वो आदम दा कीता। ते यानी उत्पत्ति की किताब तो शुरुआत शादी की हुई है और स्वयं शादी जिहड़ी है परमेश्वर ने उन्हां दी आप कीती। ते अगर असी उस तो बाद प्रकाश में चले जाइए तो उत्थे लिखिया हुण दूल्हा जिहड़ा है वो आवेगा तो अपनी दुल्हन नूं लैके जाएगा। यानी शादी तो ही शुरुआत हुई है तो शादी ते की हो जाना है, एंड भी हो जाना है। तो इस करके शादी तो परमेश्वर ने शुरुआत की दुनिया की, तो हुण यीशु मसीह ने लिखिया कि हुण क्रूस उठा के नहीं बल्कि हुण दूल्हा बन के दुनिया में आवेगा ते अपनी दुल्हन उठा के ले जाए। तो इसलिए जिहड़ी दुल्हन है वो पाक पवित्र ते उन्हां दा जीवन कैसा होना चाहिए। तो ऐसा साडा जीवन जिहड़ा है पवित्रताई वाला जीवन होना चाहिए। तो जिहड़ी कलीसिया है वो पवित्रताई वाला जीवन बसर करे। तो उत्थे उहदी शुरुआत में अगर पहली आयत विचों पढ़ते हैं तो उत्थे लिखिया कि जब बाप ने अपने बेटे की शादी की दे विच जिहड़ा
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ 10 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਮਲ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਨਕੰਮੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਦੇ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ
और लोगों ने उल्टा लोगों ने सेवकां दी की कीती? बेइज्जती कीती। जिन्ने लोग गए उन्हां दी बेइज्जती कीती, उन्हां दी पत लाई, पर कईयां नूं मार सुट्टिया। अज भी हो रहा, जदों कोई सेवक ते अज भी लोग उन्हां नूं मारदे ते कुटदे, अज भी उन्हां नूं मारदे कुटदे। कितना अत्याचार हो रहा सेवकां दे उत्ते, किन्ने सेवक जिहड़े जेलां विच चले गए। तो इस करके मैं तुहानूं दसना चाहना, अज भी यही गल हो रही है। लोग लापरवाह ने, लोगों को कोई चिंता नहीं, पर परमेश्वर साडी की करता है? चिंता करता है। परमेश्वर साडी चिंता करता है, बचाए जान, ओदी उस्तत करन, ओदी महिमा, ओदी आराधना करन ते ओदी शादी दे विच की हो जाण, शामिल हो जाण। असीं खुशियां मनाइए अपने परमेश्वर दे जेड़ा उस ब्याह दे विच, ओदे बेटे दे ब्याह दे विच की मनाइए? खुशियां मनाइए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। चुक लै ते सानू क्षमा करन वास्ते सलीब दे उत्ते अपनी जान दे दित्ती, ते हुण जेड़ा है कंडियां दा ताज पहन के जेड़ा है उन्हें अपनी मृत्यु जिहड़ी है दे दी, अपनी जान साडे लिए दे दी। पर हुण लिखिया है कि वो हुण दूल्हा बन के आएगा। की बन के आएगा? हुण दूल्हा बन के आएगा अपनी दुल्हन नूं लैण वास्ते। सारे बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि जिहड़ी दुल्हन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कलंक ना कोई झुर्री, किसी प्रकार की कोई भी बुराई कलीसिया विच होनी नहीं चाहिए। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दुल्हन है वो पाक ते पवित्र होनी चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। ਉਹਦੀ दुल्हन कौन है? वो है मैं ते तुसी, वो है कलीसिया, वो है असी ਉਹਦੀ दुल्हन हाँ। साडा दूल्हा आएगा तो एक दिन सानू वो अपने खुदा दी जिते होवे बंदे जी,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के खालिक मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, मसीह यीशु में हमारे हकीकी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हैं, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से हम तेरे पास आते हैं, तुझे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई श्याम लाल के लिए, अपनी बहन के लिए, इस परिवार के एक एक मेंबर के लिए, जिन्होंने तुझे और तेरे लोगों को प्रभु जी अपने घर में निमंत्रण दिया, ताकि तेरे आने से और तेरे लोगों के आशीर्वाद से इस शादी के सारे प्रोग्राम में तेरी आशीष बनी रहे और तू अपने लोगों की अगुवाई करता हुआ सारे कामों को पूरा करे। तो हम तेरे परिवार के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और खासकर तेरे बेटे के लिए प्रभु जी, जो तूने इस परिवार को दान के रूप में दिया और अब समय आ गया है कि उसे एक परिवार का रूप दिया जाए। तो हम प्रभु जी उस बेटी के लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं, दोनों परिवारों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, दोनों बच्चों के द्वारा तो दोनों परिवारों का मेल करवाने जा रहा है। तो प्रभु जी शादी के सारे इंतजाम पर तेरी दया हो, सारी घटियां, कमियां, कमजोरियां यीशु के नाम में दूर करना, अपने लोगों की जरूरतें पूरी करना और दोनों बच्चों पर अपनी दया बनाए रखना, इससे पहले कि वो अपने पारिवारिक जीवन की नई शुरुआत करे प्रभु जी। तो प्रभु जी पारिवारिक महत्व की उन्हें समझ देना, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उन्हें परिपूर्ण करना, ताकि अपने लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को शुरू करते हुए प्रभु जी तुझे अपना केंद्र बिंदु बनाए, अपने घर का, अपने जीवन का मुखिया तुझे बनाए और प्रभु जी तू इनकी हर हालात में प्रभु जी इनकी अगुवाई करता रहे और ये जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल करते जाए और तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। दोनों बच्चों पर अपना अनुग्रह कर और विशेष धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर साहब के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जी तूने एक सुंदर वचन, सुंदर संदेश हम तक पहुंचाया। होने दे कि ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम सबके जीवन में फल लेकर आए। पास्टर साहब के लिए, बुआ जी के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और भी जागृति और बेदारी चाहते हैं, तेरे आत्मा का और भी अभिषेक चाहते हैं, ताकि तेरी समझ के साथ तेरे वचन के भेदों को समझते हुए प्रभु जी तेरे लोगों तक पहुंचाए। उनके बच्चों पर आशीष दे, उनकी सारी कमियां, कमजोरियां आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से दूर कर, हर जरूरत को पूरा कर और यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्रभु जी इनके जीवनों को अपनी पनाह में ले प्रभु जी। इनके जीवन प्रभु जी तेरी बताई हुई दिशा में चले, तू आगे आगे इनके जीवनों में चले, तू इनका हमेशा मार्गदर्शक बना रहे और ये तेरे पीछे पीछे चलकर तेरे वचनों का अनुसरण करते हुए प्रभु जी दिन दुगनी रात चौगुनी आशीष पाए और इनके जीवन प्रभु जी आशीष देने वाले बने। ये बहुत सारी रूहों को अपने जीवन से, अपनी बातचीत से, अपने उठने बैठने से तेरी ओर खींच लाए प्रभु जी। और प्रभु जी सारे ही लोग दूसरों के लिए आदर्श बने और इस हदिये के लिए भी जो इस मौके पर इकट्ठा हुआ, तेरे सुसमाचार की गवाही के लिए इसे भी अपने खजाने में कबूल फरमा। देने वाले हाथों को दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत दे। तो एक बार फिर से हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, खासकर दोनों परिवारों को, तेरे दोनों बच्चों को जिन्हें तू परिवार का रूप देने जा रहा है, क्योंकि परिवार की इकाई तूने शुरू की। तो प्रभु जी अपने बच्चों पर आशीष दे, सारे इंतजाम को अपने हाथ में ले। तूने प्रार्थना सुना, तेरा धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से आए। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक पाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान की पूरी होती जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें आजमाइश में न पड़े बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह हमेशा तक आमीन। अब हमारे खुदा व यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक की रिफाकत तशराकत दोनों परिवारों पर, दोनों बच्चों पर और हम में से हर एक के ऊपर हमेशा हमेशा तक होती रहे।